کو جو تھا وہ اس دنیا میں گزارا، لیکن 3 سال کی منادی 30 سال کی منادی کو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے کی۔ 30 سال کی منادی اپنے ماں باپ کے لیے کی، ان کی فرما برداری میں رہا، ان کی باتوں کو فالو کرتا رہا اور ان کے ساتھ رہا۔ لیکن خاص کر کے وہ اپنی ماں مقدسہ مریم، جس کے وسیلہ سے وہ پیدا ہوا، اس کی عزت کرتا اور اس کے ساتھ ہر وقت اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ چاہتا کہ کوئی بھی بات جو ہے جو میری ماں کے منہ سے نکلے میں اس کو پورا کروں۔ اور اس نے 30 سال کو اپنے پیرنٹس کی وفاداری میں گزار کر 3 سال پھر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا شروع کیا۔ 30 سال میں اس نے کوئی معجزہ نہیں کیا، کوئی اندھے کو آنکھیں نہیں دی، کسی کو اس یسوع کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ ایک نبی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ ایک الگ زندگی ہے، اس کے اندر کتنی پاور اور قدرت ہے۔ کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ یسوع جو ہے یہ صلیب پر جان دے گا، یہ مرے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ صرف اور صرف اس کی اس 3 سال کی زندگی جو تھی، اس نے پوری دنیا کے اندر بیداری لے آیا۔ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خدا کا کلام بڑی قدرت کے ساتھ پھیل گیا، اور اس نے جو اپنی ماں باپ کا وقت تھا وہ بہت لمبا سفر تھا اس کا، لیکن جو خداوند اپنے باپ کا سفر تھا وہ بہت تھوڑا سفر تھا۔ اور اسی سفر کے اندر ایک بڑی جنگ تھی جو مسیح یسوع نے ہمیں فتح کر کے دکھا دی، کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ آمین۔ تو آج جب ہماری زندگی کی طرف جانا جائے، دیکھا جائے، نہ تو ہم اپنے پیرنٹس کی طرف وفادار ہیں اور نہ ہی اپنے خدا کی طرف وفادار ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو محدود اپنی مرضی کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی چیزوں کو محدود اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملک شیک ہے، تو وہ مشین بنانے والی جو ہے تو وہ صرف میرے لیے ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی موٹر بائک ہے تو وہ میرے لیے ہے، میں نے اپنے لیے لی ہے۔ اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ میرے اپنے لیے ہے۔ اگر گھر ہے تو وہ میرے اپنے لیے ہے۔ لیکن مسیح یسوع کی تعلیم ان ساری چیزوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے آج تک اس خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک نہ پہچانا ہے اور نہ ہی ہم نے جانا ہے کہ اس کی الہی قدرت میں ہے کیا کیا۔ موبائل ہم نیا لے لیتے ہیں، اس کی سارے فنکشن جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ہم اس کو رات بھر کلک کر کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی طرف ہم اس کی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ ہم پورے موبائل کو جو ہے ہم جان جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس لیپ ٹاپ آ جائے تو ہم اس کو ساری کو ریسرچ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے میں نے رن کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ جو بھی ہمارے گھر میں چیز ہوتی ہے ہم اس کے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں آج تک ہم نے ریسرچ نہیں کیا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کیسی زندگی ہے،
वो क्या चाहता है, उसकी मनादी का मतलब क्या है, उसकी खिदमत का मतलब क्या है, उसका इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, उसका सलीब पर चढ़ जाने का मकसद क्या है, और उसकी हर बात का मकसद जो है वो हम नहीं जानते। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हर रोज इन चीजों को देखना है। खुदा की यीशु मसीह कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी की इन बातों को जो है वो सर्च में लाना चाहते हैं कि हम बैठकर सोचें, देखें, परखें कि ये क्या खुदावंद मेरे लिए कुछ करना चाहता है। क्या खुदावंद को चाहता है कि मैं खुदावंद की जिंदगी को कैसे गुजारूं जो उसने मुझे दी है। खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम जब देखते हैं तो कुरिन्थियों के खत में से हम देखेंगे उसका 5 बाब, पहला कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 13, 14 और 15 आयत पढ़ देंगे। बल्कि 6 बाब पढ़ेंगे, सॉरी 6 बाब की 13, 14, 15 आयत। खाने पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनकी नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए है। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हम को भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो क्या होता है? उसके साथ एक रूह होता है, उसके साथ एक रूह होता है। लेकिन खुदा ने हर चीज को जो है उसको हर चीज को खुदा ने अलग अलग जो है वो पोर्शन दिए हुए हैं। खुदा ने हर चीज को अलग अलग कर दिया हुआ है। खुदा ने कहा खाने जो हैं वो पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए है, लेकिन खुदा उसको और उसको नेस करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है। खुदावंद बदन के लिए, खुदा किसके लिए है? बदन के लिए है, और बदन खुदावंद के लिए। हमारा बदन खुदावंद का मकदस है। ये बार बार हम इस हवाले को सीख चुके हैं। इसलिए खुदा ने इसको डिफरेंट कर दिया कि बदन जो है वो खुदावंद के लिए है, और बदन खुदावंद के लिए और खुदावंद बदन के लिए। आमीन। इसलिए इनका कॉन्सेप्ट जो है, इनका और चीज का इनके अंदर नहीं होना चाहिए। पेट का सिर्फ खानों का तल्लक है बस। पेट को कलाम से नहीं भरा जाता, पेट को सिर्फ कलाम से ही नहीं भरा जाता, बल्कि बदन पूरे का कमिटमेंट खुदा ने कर दी है। इस पूरे बदन की, जैसे हम रोजा के बारे में कहते हैं कि बदन जो वो रोजा जो है वो बदन का है। आमीन। कि हमारे पूरे बदन का रोजा है। इसी तरह पूरे बदन का क्यों है कि पूरे बदन का मालिक भी खुदावंद ही है, और बदन खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए है। आमीन। हम कहें कि खुदावंद तू इधर स्टिल हो जा, इन मजबे पर रहा कर, बस मैं जब आया करूंगी मैं मिल लिया करूंगी। खुदावंद तो बस चर्च में रहा कर, जब मैं आया करूंगा मेरी मुलाकात चर्च में हो जाया करेगी। खुदा कहां रहना चाहता है? बदन के अंदर रहना चाहता है। खुदा आपके बदन के साथ साथ चलना चाहता है। क्यों? कि अगर आप यहां पर ही रखेंगे खुदावंद को,
मजबे पर ही खुदाम को रखेंगे, चर्च में ही खुदाम को रखेंगे, तो फिर आपके काम जो है उनमें कौन आएगा? अबलीस आएगा। आपके बदन को कौन छूने आएगा? अबलीस आएगा। आपके बदन के वसीला से कौन काम करेगा? अबलीस काम करेगा। इसलिए खुदावंद ने इस बात के लिए कह दिया, आप तो छोटे बच्चे से कता जाते हैं, कहते नहीं ये मुझे उठाना पड़ता है, मैं इतना सफर नहीं कर सकती। मैं बाजार में जब जाते हैं, मैं देख रहा था एक बेटी है, मे भी वो 3 मंथ की होगी या 4 की होगी है, तो वो उसको घर में छोड़ के चले गए, खुद इस्लामाबाद गए हैं मियाँ बीवी, और वो सारी रात भी उनको लग गई, सारा दिन भी लग गया, अगली रात भी लग गई। और वो बच्ची क्या सोचती होगी कि मेरी माँ और मेरा बाप कहाँ है? छोटी है बच्ची, बोल नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर सेंस है, वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी में एक बोझ समझते हैं। क्या खुदावंद जो है हम उसको उठाकर चले? हाँ, जब भी मैं खुदावंद को पास रखूंगा तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, जब यीशु मेरे पास होगा तो मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं कर पाऊंगी, ऐसा गुनाह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यीशु को मुझे स्वच्छता की रहने देना है। हाँ, या अपनी मैं दुआ में उसे बुलाऊंगी। क्या खुदावंद को हमने क्या बनाया हुआ है? हम क्या खुदावंद को समझते हैं? क्या खुदावंद इस बदन को बनाने वाला कहीं और है, हम कहीं और है, हमारा बदन कहीं और है, खुदावंद कहीं और है। हमने पढ़ा क्या है, इसको फिर आप एक दफा पढ़ दें जरा। खाने पेट के लिए है और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और उस ईद को नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए, और खुदावंद जो है वो किसके लिए है? बदन के लिए है, बदन के लिए है। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। जब हम बदन में रखेंगे तो फिर हम उन कब्रों में जो मर जाएंगे, मिट्टी के नीचे आ जाएंगे, उस कब्रों में से हम उसका इस्तकबाल करेंगे। कब? जब यीशु हमारे साथ होगा। तो अगर हम यीशु को इसी तरह रखेंगे, 8 दिन के बाद मिलने वाला, 24 घंटे के बाद मिलने वाला, तो फिर आप कभी भी अपने बदन में यीशु को उठता हुआ नहीं देखेंगे। आपका बदन मुर्दा ही रहेगा। आप उठेंगे तो सही, खुदावंद के हुक्म से उठेंगे तो सही, लेकिन आप जलाए नहीं जाएंगे, आप खुदा का इस्तकबाल नहीं कर पाएंगे, आप उसकी बादशाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप गुनाह की जिंदगी को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। आप इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं कर पाते। मैं एक बात कर रहा था, उसकी रिसर्च आपको भी उस चीज का पता होगा कि जब एक मां जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जब खुराक उसको नहीं मिलती, जब वो अच्छी खुराक नहीं ले पाती, तो फिर बच्चा जो होता है वो उसकी हड्डियों से खुराक मुहैया करता है, वो उसकी हड्डियों से खुराक रिसीव करता है। यानी कि अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो तब भी उसी बदन में से ताकत निकलेगी, अगर वो कोई काम करेगी तो तब भी उस बदन में से ताकत निकलेगी, अगर वो नहीं खाएगी तो सब कुछ उस बदन में ही से वेस्ट होता जाएगा। उस बदन ने क्या फिर होना है? कमजोर होता है, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक के बाद वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन अगर उसी बदन के अंदर क्या होगा? यीशु होगा। कौन होगा? यीशु होगा। तो फिर वो बदन के साथ हवाला अटैच कर देंगे कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर एक बात जो उसके मुंह से निकले।
خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں انرجی دیتا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں طاقت دیتا ہے. یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ تیرے روح سے ہو جائے گا. اس لیے یہ بدن کس کا ہے؟ یہ خدا کا بدن ہے. خداوند اس میں رہے یا ہم اس میں رہیں، بات ایک ہی ہے. ہم رہیں خداوند میں یا خداوند ہم میں رہے، بات ایک ہی ہے. ہم اسے بلائیں یا ہم اس کے پاس جائیں، بات ایک ہی ہے. لیکن اصل بات زیادہ دیر رکھنے کی ہے. لانگ زندگی خدا کے ساتھ رکھنے کی ہے. خداوند نے، یسوع مسیح نے ہمیں سکھا دیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کی 30 سال خدمت کی ہے، لیکن میں جس کے لیے آیا ہوں اس کی میں نے 3 سال خدمت کرنی تھی اس دنیا میں رہ کر. اس لیے کہ لوگ مجھے جانے کہ مجھے خداوند نے بھیجا ہے. میں خداوند کے لیے آیا ہوں. میں اس کے کاموں کے مطابق آیا ہوں. جو میرا باپ مجھے کہے گا وہ میں کروں گا. یہ میرے باپ کا حکم ہے کہ جو کچھ وہ مجھے بتاتا ہے میں وہ کرتا ہوں. باپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. آمین. باپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. میں رات کو اسٹڈی کر رہا تھا، بات کی کہ سرکہ جو تھا وہی سرکہ جو یسوع نے پینے سے نہ کر دی، سلیب دینے سے پہلے آتے ہوئے سرکہ پلا دیا. اور وہ سرکہ نہیں پلایا جو یروشلم کی عورتیں بناتی تھی، بلکہ وہ سرکہ پلا دیا جس میں پت بھی نہیں تھی. پت جو تھی وہ بے ہوشی کا عالم، ہوش نہیں رہتی تھی مجرم کو. اس لیے یسوع نے اس کو پینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اور دوسرا سکہ جو تھا وہ صلیب پر اس نے اسی کو پینے پر ایگری ہو گیا، کیونکہ وہ سرکہ صرف پیاس بجانے تک تھا. وہ ان جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ایک مشروب تھا، شربت تھا، وہ بنا کر فوجی اپنے پاس رکھتا تھا، اور وہ جب اس کو پلایا تو اس نے اس کو پی لیا. سو بات ہماری خداوند یسوع مسیح کی یہ ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے جو گناہ تھے ان کا ایک بڑا پیالہ جو مجرم کی طرح کا ہوتا ہے اس کو اس نے کیا کیا؟ ریسیو کیا، پیا، لیا. اس نے ایک ذرا بھی اس میں سے پیالے میں سے چھوڑا نہیں ہے. وہ موت کا پیالہ اس نے اس کو پورے کے پورے کو پی لیا. اس نے ہمارے لیے اس کو ایک ذرہ بھی چھوڑا، جو قطرہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑا کہ آپ کی ساری مصیبتوں کو، مشقتوں کو میں اٹھا کر لے جا رہا ہوں. میں اب آپ کو مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا. تو ہم آج بھی مصیبت میں ہیں، آج بھی ہم پریشانی میں ہیں، آج بھی ہم حالات میں ہیں. اس لیے ہیں کہ خداوند ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے. خداوند ہمارے بدن کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ نہیں ہے. خداوند ہمارے بدن کے ساتھ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. خدا کے پاک کلام میں سے 5 باب کی 5 آیتیں دیکھ لیں گے. میں نے 5 باب بولا تھا پہلے، اسی کا ہی. جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے. جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. تاکہ اس کی روح جو ہے وہ خداوند یسوع کے دن کیا پائے؟ نجات پائے. ہم اس کے حوالے کیے گئے ہیں. ہم اس دنیا میں اس کے حوالے کیے گئے ہیں. ہم ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں. وہ اس جہان کا خدا ہے. اگر ہمارے بدن میں یسوع نہیں ہوگا،
अगर हमारे रूह में यीशु नहीं होगा, अगर हम यीशु में नहीं होंगे, हम खुदा में नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो हम पर काबज हो जाएगा, फिर वो हमारी जिंदगी को जो चाहे करे। मेरा दिल दुआ को नहीं करता, मेरा दिल चर्च जाने को नहीं करता, मेरा दिल रोजा रखने को नहीं करता, मेरा दिल कलाम पढ़ने को नहीं करता, मेरा ध्यान कलाम की तरफ नहीं होता। इसका रीजन ये है कि हम अबलीस के हाथों इस प्लेटफॉर्म पर है। प्लेटफॉर्म के अंदर हमें क्या करना है? हमें उस यीशु को अपने अंदर रखना है। आमीन। ये तो कुछ और सिस्टम बन गए हैं, पहले ये नहीं थे। पहले जो जौन से मर्जी मुल्क में आप जाएं कोई टेंशन नहीं थी। अब सरहदें बन गई, बातें जो थी वो डिफरेंट हो गई, हर चीज को जो है वो जो था डिवाइड कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह जो थे उसकी कुदरत आज भी उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। आमीन। उसकी कुदरत के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। आप अमेरिका में यहां से प्रेयर कर रहे, खुदा वहां पर काम कर रहे हैं। आप इंडिया में काम दुआ कर रहे, इंडिया में खुदा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक बहन इंडिया में जो थी उसके लिए प्रेयर में कर रहा था, तो वो उसके अंदर बदरू आ गई और उसकी वीडियो बनाकर उसने भेजी कि इसकी हालत ये थी। और जब प्रेयर के बाद खुदा ने उसे शिफा दे दी और वो हील हो गई। यानी कि खुदावंद के सामने कोई सरहद नहीं है। आमीन। वो जिधर मर्जी उसका पाखरू जो है वो जा सकता है। इसलिए जब खुदावंद हमारे अंदर होगा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, तो फिर हदें हट जाएंगी। आमीन। फिर हदें हट जाएंगी। फिर खुदावंद आपको जहां चाहेगा आपको खिदमत के लिए ले जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर यीशु नहीं है, इसलिए हम महदूद हैं। लामहदूद यीशु जब आएगा तो फिर हम लामहदूद हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने खुदा के हुजूर इस आयत की तरफ हम आते हैं कि जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, ताकि उसके रूह खुदावंद यीशु मसीह के दिन क्या पाए? निजात पाए। उसका रूह जो हमारे अंदर है वो खुदावंद यीशु मसीह में क्या पाएगा? निजात पाएगा। अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो आज बदल में किसको आने दे? यीशु को। क्या पढ़ा है कि यीशु हमारे अंदर हो और हम यीशु। जैसे भी हो एक ही बात है, हम उसके अंदर जाएं या वो हमारे अंदर आए, बात एक ही है। खुदावंद इसीलिए कहता है कि हमारा खुदा 4 बाब की 4 आयत में लिखता है। इसी के पीछे आ जाएंगे तो 4 बाब की 4 आयत पढ़ लें जल्दी से। आपने कोई बात? मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे वह रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। आमीन। गौर से इस बात को सुनेंगे जरा। क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला कौन है जी? खुदावंद है। मेरा दिल जिहड़ा है वो करदा है कि चर्च जावां, ते एक दिल करदा है ना जा। लेकिन खुदावंद हमारा परखता है कि तू जाएगा तो तू निजात पाएगा। दिल हमारा जो है ये हमें पार नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके लिए लिखा है कि दिल हिलाबाज और लालाच है। दिल की बातों पे लगने वाले कभी कामयाब नहीं होते। दिल की बातों पर ना लगे, बल्कि दिल अपना यीशु को दे दे। आमीन। दिल किसको दे दे? यीशु को दे दें। जब हम यीशु को दिल दे देंगे तो फिर यीशु इस दिल में होकर खुद काम करेगा। फिर दिल को काम नहीं करने देगा, दिल को काम नहीं करने देगा। फिर यीशु इस दिल में होकर क्या करेगा? काम करेगा। जो हीलाबाज है, लाल आ जाए, ये दिल ठीक हो जाएगा। आमीन। इसका दिल का लाज हो जाएगा। आमीन। दिल लाल आज है, हीलाबाज है, इसका लाज खुदावंद यीशु मसीह के पास है। क्या पढ़ा हमने? कि क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता,
बल्कि इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता। मलामत ही नहीं होती तो रास्तबाज कैसे ठहरूंगा जी? दिल कहे नहीं उठ के ते जल्दी बाइबल पढ़ ला, दिल कवे नहीं उठ के ते इन्ने घंटे दुआ कर ला, दिल कवे नहीं ऐ कर ला खुदा ली, ते फिर ते ठीक है। इस वास्ते कहता वो रास्तबाज ही नहीं ठहरता। आमीन। तो हमें क्या करना है जी? परखने वाले के पास आना है। लिखा है बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है, मेरा परखने वाला खुदावंद है, वो मुझे परख सकता है, वो मुझे चाहता है कि मैं हलाकत की तरफ जा रहा हूं या कि मैं जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है ये बड़ी कीमती है अजीजों, बहुत कीमती है। मैं आज एक न्यूज सुन रहा था कि वो इटली की तरफ जो है वो कुछ पाकिस्तानी गए और वो काफी पाकिस्तानी जो थे वो कश्ती जो थी वो डूब गई। उसके वसीला से कुछ इटली वालों ने बचा लिए, 6-7 लोग 5 लोग या जितने भी थे, और बाकी जो थे वो अभी तक नहीं मिल रहे। तो उनके लोग जो परेशान है पाकिस्तान के अंदर, वो एम्बेसियों से राब्ते कर रहे हैं। एम्बेसडर जो पाकिस्तान का इटली में बैठा हुआ है उसके साथ राब्ता कर रहे हैं कि काश हमें ये पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं वो 20 साल के 25 साल के जवान बच्चे हैं सारे, और हमारे बच्चे जो हैं वो उन जिंदों में से हो जाए। उनके दिल की चाहत है कि जब हम फोन करें तो हमारे बच्चे जो है जिंदा जो है ना वो कहें कि मैं आपका बेटा हूं। वो कहें कि ये ना हो कि हमारे बच्चे अभी उनकी लाश नहीं मिले या वो ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे, और कुछ बच्चे उन्होंने बचा लिए। हम सब क्या चाहते हैं? अपने खानदान की और अपनी क्या चाहते हैं जी? जिंदगी चाहते हैं। आमीन। तो हम जब अपनी जिंदगी चाहते हैं, अपने खानदान की जिंदगी चाहते हैं, तो फिर हमें किसके साथ रहना है? इस बदन का होल्ड किसको दे देना है? खुदावंद को अपना होल्ड दे दें, या खुदावंद को कहें कि इस बदन में तू आ, मैं तेरे लिए तैयार। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान का बदन तैयार किया, इंसान का बदन तैयार किया कि मैं क्या करूं? इंसान के गुनाहों को उठाऊं। वो खुदा बनकर नहीं आया, बल्कि क्या बनकर आया? इंसान बनकर आया। तो इंसान ने इंसान का कलाम सुना जब, तो उन्होंने निजात पाई, वो सुनकर तौबा कर गए। तो यूहन्ना का भी काम यही था कि वो क्या मनादी कर रहा था? तौबा की मनादी कर रहा। तो आज हमारी जिंदगी में अगर मसीह यीशु नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जितनी मर्जी दुआएं करें, जितनी मर्जी आप रोजे रखें, जितनी मर्जी आप वर्शिप करें, जितने मर्जी आप अच्छे प्रश्तार हो जाए, जितनी मर्जी आप अच्छे प्रीचर हो जाए, आप कुछ नहीं हल आपकी जिंदगी का हो सकता। अगर होना है तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आ जाए, हम या खुदावंद में चले जाएं, तो फिर सारे काम हो सकते हैं। आमीन। आज इंसान जो है वो दौलत के पीछे भागता है। कहीं दौलत मेरे हाथ चढ़ जाए तो बस मैं सुख में हो जाऊं। उसको ये नहीं इल्म कि दौलत के लिए लिखा हुआ है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस, पता भी है लेकिन फिर दौलत के पीछे भागता है। इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे। हमें खुदा के कलाम के लिए खुदा की आवाज को सुनना है, खुदा की आवाज के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, इसको छांटें खुदा के कलाम के वसीला से, ताकि हम महदूद उस रास्ते पर चल सकें जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए बनाया। क्योंकि राह हक और जिंदगी यीशु का हक है, जिंदगी है। हम उस रास्ते पर जब जाएंगे तो फिर हम स्टैब्लिश होंगे, बरकत पाएंगे। आमीन। तो हमारी जिंदगी के एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ यीशु। यीशु को या अपने अंदर आप खुद बुला ले या यीशु के अंदर चले जाएं, तो आपकी जिंदगी हम सब की जिंदगी आसान हो जाए। हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
खुदावंद हमारे कामों को खुद ही जानता होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि ना हम दोनों कामों में भी नहीं। यीशु ने पहला काम क्या किया कि अपने माँ बाप की खिदमत की, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आमीन। तो हमारी जिंदगी में दोनों काम ही जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम खुदावंद के हुजूर में जा सकेंगे। आए अपने आंखें बंद करें और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज हमारी जिंदगी के लिए जो कलाम हमने सुना है वो हमारे लिए बाइक से बरकत हो। बेटी दुआ करें, दुआ करेंगे। मानो बेटी कलाम में हक की दुआ। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप खुदा बेटी यीशु के नाम से तेरा शुक्र। अब आप अपनी जिंदगी में दुआ करें, तमजीद करते हैं, हौसला मांगे खुदा से, हम तेरा शुक्र करते खुदा के हैं। साथ बढ़ने का हौसला मांगे। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। आज इस मौका इस घड़ी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, सारे वक्त के लिए, सारी मीटिंग के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। जलाल के बादशाह कि तूने अपने जलाल को जाहिर किया, अपनी रहमत से घेरे रखा, अपने पाक को नासिल किया। ओ यहोवा पाक खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल किया। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने गहरे भेदों को अता किया। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस कलाम पर अमल कर सके। तू हमें ये तौफीक बख्श कि हम तेरे हुक्मों पर अमल कर सके। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में आ। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ यीशु नासरी कि तू अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी जिंदा आवाज के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए, खुदा बाप तेरे बेटे के लिए। ओ यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ जलाल के बादशाह तेरी दी नेमतों बरकतों के लिए। ओ यहोवा पाक खुदा कि आज के कलाम के वसीला से हम ढेरों ढेर बरकत पाए, और खुदा बाप हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे जो सब नामों से आला है। ओ यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि ये बरकत हमारे साथ जाए। ओ यहोवा पाक खुदा इस बरकत के वसीला से और भी जिंदगियां बरकत पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ओ यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। ओ यहोवा पाक खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। ओ यीशु नासरी तू अल्फा और ओमेगा है, तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। ओ यहोवा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जलाली खुदा तू हमारे साथ रहना। ओ यहोवा पाक खुदा तू हमारी जिंदगी में आ। ओ यहोवा पाक खुदा हमारी जिंदगी तेरी बेदार है। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करती हूँ तू हमें दुआ की बेदारी दे, प्रस्तिश की बेदारी दे कि हम बेदारी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ओ यहोवा पाक खुदा तू छू लेना, कसरत से बरकत देना, मांगती तेरे चढ़ाई बाबरकत नाम से आमीन। आए हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह पाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज जो आज में दे अपने बदल को बख्श देना, हमारे बख्श आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाह हमेशा तेरी। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक इरफात और शाकत को ईमान धर्म कसीनों के साथ, खासकर खुदा सादर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदा हम सबके साथ हो। खुदा हम आपको बरकत दे। हम हमारी तरफ से सबको सलाम, आपको सलाम की।